عزیزو کیا آج آپ کتنے خوش ہیں؟ بہت خوش ہیں کہ آپ عزیزو یہ آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور ایک نبوت پوری ہوئی. آج کے دن ایک نبوت پوری ہوئی اور بنی اسرائیل کا بادشاہ جو خدا کی طرف سے تھا وہ اس دنیا میں یروشلم میں ایک والہانہ انداز میں لوگ جب یسوع گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں آئے تو لوگوں نے اتنی عقیدت سے جو بہت مدتوں سے اس بادشاہ کی انتظار میں تھے کہ وہ ہمیں تمام ظلمات سے تمام دنیاوی بادشاہوں سے اور تمام جو ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان سے رہائی دے گا اور ہمیں ہم پر سکون اور امن کے ساتھ زندگی بسر کریں. میرے عزیزو یہ انتظار تھا اور نبوت تھی. صیون کی بیٹی کو آپ مجھے بتائیں گے کہ صیون کی بیٹی کس کو کہا گیا ہے؟ صیون کی بیٹی کس کو کہا گیا ہے؟ جس کو کوئی غور سے بتائے گا ذرا اونچی آواز سے، کس کو کہا گیا ہے؟ صیون کی بیٹی اس کو کہا گیا ہے جو صیون کے رہنے والے ہیں. صیون میں کون رہنے والے ہیں یہ بتائیں گے؟ افسوس ہے سالوں سال آپ یہ کلام سنتے آ رہے ہیں، ہر سال یہ کلام جو ہے آپ تک شیئر کیا جاتا ہے لیکن پھر خاموشی ہے. افسوس کی بات ہے. پتہ نہیں اگلے سال میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا، آپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، موقع ملے گا یا نہیں ملے گا سننے کے لیے. تو آج غور سے سن لیں، اپنا دھیان خدا کے گھر میں رکھیں، ادھر ادھر کی باتوں کی طرف رجوع نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں. صرف 20-25 منٹ کا سرمن ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں. صیون مقدس لوگوں کو کہا گیا ہے. مقدس لوگ وہ ہیں جو داؤد کے گھرانے کے لوگ ہیں. سلیمان نے صیون میں اپنا گھر بنایا اور اس کو صیونی، داؤد کے گھرانے کو صیونی لوگ کہا گیا. اور یہ جو صیون کے لوگ ہیں ان کو خدا عورت کی ذات پانی سے منتخب کرتا ہے اور منسوب کرتا ہے کہ آئے صیون کی بیٹی اور یروشلم کے لوگوں. میرے عزیزو یروشلم کے اندر ہیکل تھی اور یروشلم کو یروشلم ہی کہہ کر خداوند نے پکارا اور جو مقدس لوگ تھے ان کو صیون کر کے خداوند نے ان کو پکارا. یہ داؤد کی نسل کے لوگ تھے. تو
یہ لوگ پسے ہوئے لوگ تھے. اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو بہت جنگ و جدل ہوئے, خون خرابے ہوئے, کیونکہ جو بھی بادشاہ آتا کچھ عرصہ خداوند کے ساتھ چلتا اور بعد میں وہ اس راہ سے منحرف ہو جاتے, اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چلے جاتے اور خدا ان کے ساتھ ناراض ہو جاتا اور خدا ان کو قید کی صورت میں دوسرے بادشاہ کے, کبھی نبوکدنصر بادشاہ کی, کبھی اسور کے بادشاہ کی, کبھی کسدیوں کے بادشاہ کی, کبھی فلسطینیوں کے بادشاہ کی یاد میں خدا ان کو دے دیتا تھا. لیکن لوگ جو تھے وہ ظلم سہ کر, اور کیونکہ اگر دیکھا جائے آج بھی مسیحی لوگ جو خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں ان پر ظلم و شدت کیا جاتا ہے, آج بھی کیا جاتا ہے, اس وقت بھی کیا جاتا تھا, آج بھی کیا جاتا ہے. لیکن میری چیزوں آج ہم پر جب ظلم و شدت ہوتا ہے تو ہم کسی دوسرے بادشاہ کی قید میں نہیں جاتے بلکہ اپنے ہی ملک کے اندر قید میں چلے جاتے ہیں, یا ہمیں ہمارا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے. میرے عزیزو, خداوند نے یسایہ نبی کو پیشن گوئی کے طور پر کلام دیا اور کہا کہ ایک عورت جو کنواری ہے اس کے باطن سے ایک لڑکا مولد ہوگا. میرے عزیزو, جب خدا نے یہ پیشن گوئی یسایہ نبی کے منہ میں رکھی تو یسایہ نے اس لڑکے کے متعلق جو کنواری عورت سے بن باپ کے پیدا ہونے والا تھا اس کے لیے کیا پیشن گوئی کی ہے, ہم اس کو غور سے سنتے ہیں. یسایہ کی کتاب اس کا نامہ باب اور اس کی میں 6 آیت سے تلاوت کرتا ہوں. اس میں لکھا ہے, ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, ہوگا نہیں, ہوا. اسی وقت, اس کا مطلب ہے اسی وقت جو تھا وہ اس کے خیال میں پیدا ہو گیا. ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. یہ اس کا بیان ہے, یسایہ نبی کا بیان ہے کہ ایک لڑکا تولد ہوا اور ایک بیٹا ہمیں بخشا گیا اور اس کی سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اس کی حکومت اس کے کندھے پر ہوگی اور اس کا نام جو لڑکا بخشا گیا ہے اس کا نام عجیب ہے, مشیر ہے, خدا قادر ہے, ابدیت کا سلامتی کا باپ ہے, سلامتی کا شہزادہ ہوگا اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ تنہا نہ ہوگی. میرے عزیزو, یہ اس کے القاب ہیں اور اس کی سلطنت اتنی اقبال مند, اتنی سرفراز, اتنی بلند ہوگی کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. پھر آگے پیشن گوئی کے طور پر وہ کہتے ہیں وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک ہمیشہ حکمران رہے گا. کتنی بڑی یہ اس قوم کو جو اس بادشاہ کی منتظر تھی, اس
उस बादशाह को हासिल करने की ख्वाहिशमंद थी कि एक बादशाह आएगा, वो हमें तमाम मुसीबतों से रहाई बख्शेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये उस बादशाह की जो उस दिन यरूशलेम में एक खामोशी के आलम में जब दाखिल हुए, तो यरूशलेम के लोगों को पता चला कि ये वो बादशाह चला आ रहा है। तो उन्होंने अपने कपड़े उस गधे के पांव के नीचे जिस पर वो सवार था उसके नीचे बिछा लिए और खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल किया। मेरे अज़ीज़ों, ये बादशाह जो है, ये दाऊद के घराने से जो सयून के लोग हैं जिनको तसल्ली दी गई है। अगर हम ना ज़करिया 12 बाब उसकी 6 आयत में पढ़े तो उसमें भी यही लिखा है, क्या है, देखो ऐ सयून की बेटी, तेरा बादशाह तेरे पास चला आता है, वो गधे पर सवार, बल्कि लादू के बच्चे पर सवार है। ये पेशन गोई की गई है। यहाँ भी यूहन्ना इसी पेशन गोई के तल्लुक से बात कर रहा है। सयून के लोगों को तसल्ली दी गई है और वो पेशन गोई आज से कोई 2200 साल 2200 साल पहले पूरी हो गई और उसी को याद में आज हम इस पैगाम को शेयर कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, वो बादशाह जो आने वाला उस वक्त आ गया है। अब बादशाही चल रही है, खुदा की बादशाही चल रही है, उसका अखीर नहीं है। वो दाऊद के तख्त पर बैठा हुआ है और उसकी बादशाही का अखीर नहीं है। और जो लोग दिल से, रूह से, ईमान के साथ उसका इस्तकबाल हर रोज करते हैं, क्योंकि उसकी बादशाही के दरवाजे, उसका दरबार हर वक्त लगा हुआ है, हर वक्त उसके दरवाजे खुले हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, वो फाटक बंद नहीं हुआ। मेरे अज़ीज़ों, वो दरवाजे बंद नहीं हुए, वो दरवाजे आज भी खुले हैं। और जिस शख्स का इस्तकबाल, जिस शख्स की इबादत, जिस शख्स की मनादी, जिस शागिर्द के नाम के तल्लुक से होगी, जिस तरह वो मनादी करता रहा, उसकी तर्ज की मनादी, उसकी तर्ज की इबादत होगी, तो वो उसके गेट में से, उसके दरवाजे में से गुजरकर उसकी बादशाही में दाखिल होगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि हम यूहन्ना रसूल के दरवाजा में से गुजरे, पतरस के दरवाजा में से गुजरे, तो फिर जिस तरह के उनके तौर तरीके हैं, उन्हीं के मुताबिक आपको अमल करना होगा। फिर आप जब उन्हीं के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, उनके बताए हुए असूलों पर खुदावंद की इबादत करेंगे, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, उन्हीं के दरवाजे में से गुजर कर जाएंगे। हैकल के 12 दरवाजे हैं। यीशु हैकल के अंदर गया, वो दरवाजा जो मशरिक की तरफ था, उस दरवाजे में से दाखिल हुआ। और बाकी दरवाजे जो 12 थे, हर कोने में 3-3 दरवाजे हैं और 4 मशरिक, मगरब, शुमाल, जनूब 4 इतराफ हैं। और ये कह लें कि मशरिक से शुमाल तक जो है ये 3 दरवाजे, शुमाल से जनूब तक 3 दरवाजे, जनूब से मगरब से जनूब तक जो है ये 3 दरवाजे, और जनूब से फिर मशरक तक जो है 3
दरवाजे, ये 12 दरवाजे बन जाते हैं। और मशरक़ की तरफ जहाँ सूरज निकलता है जिस तरफ से, एक और दरवाज़ा है, उस दरवाजे में से यीशु दाखिल होता है और वो दरवाज़ा बंद हो गया है। अब उस दरवाजे में से किसी इंसान का गुजर नहीं होगा, क्योंकि उस दरवाज़ा में से इस्राएल का बादशाह गुजरा है, और जिसमें इस्राएल का बादशाह गुजरा है वो खुदा है। खुदा जिस रास्ते से गुजरा है वो रास्ता बंद है, और अब जो 12 दरवाजे खुले हैं उन दरवाजों में से पूरी दुनिया जो है उन दरवाजों में से दाखिल होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह आज आपने बड़े पुरजोश और खलूस इस्तकबाल किया है, इसी तरह हर रोज पाक का इस्तकबाल, वो आपके दिल के दरवाजे पर खड़ा है, खटखटाता है, कहता है कि मेरी बेटी मेरे लिए खोल। मैं आज बहुत खुश हुआ, मेरे साथ हज़रत साहब भी तकरीबन खुशी में, मेरी खुशी में शरीक थे। भाई सलीम चर्च के अंदर आए, लेकिन अफसोस कि वो अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। पता नहीं खुदावन ने इतना ही मौका दिया कि आप चर्च के अंदर आए, फूल चढ़ाएं और जुलूस के साथ इस्तकबाल करें, फिर वापस चले जाएं। मेरे अज़ीज़ों, ये भी खुदा की मर्जी का है। हम शुक्र करते हैं फिर भी खुदा उनका कि उन्होंने, खुदा ने उनको मौका बख्शा है कि सलीम आज तुम्हें खुदा के घर में जाना है। मेरे अज़ीज़ों, जो ये बादशाह है, इसके हाथ में अदालत है, इसके हाथ में नजात है। ये बादशाह अदालत करने और नजात देने के लिए आया है, नजात देने के लिए यरूशलेम में दाखिल हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, आज अदालत का नहीं बल्कि नजात का दिन है। आज नजात जारी और सारी है। जो लोग नजात पाना चाहते हैं वो आज उसके दर के दरवाजे को खटखटाएं। क्या खुदावंद, मैं तेरे दर के दरवाजे पर आया हूं, तू मेरे लिए खोल। मैं अपने पूरे दिल से, पूरी ताकत से अपने कपड़े तो नहीं बिछाता, आज तू मौजूद तो नहीं, लेकिन तू रूह की सूरत में हमारे दरमियान मौजूद है। मैं अपना दिल तेरे हजूर अंदर देता हूँ, मैं अपना दिल तुझे पेश करता हूँ। ऐ खुदावंद, अपनी हजूरी में मेरे दिल को कबूल फरमा और मुझे निजात बख्श दे, मुझे बख्श दे, मुझे मेरे ईमान को मजबूत कर, ताकि मैं मजीद सरफराजी पाऊँ, मजीद तेरे साथ चल सकूँ और तेरे साथ मलबूस होकर अपनी जिंदगी गुजार सकूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज मौका है, कल मौका नहीं है। आज का दिन आज के लिए काफ़ी है, आज का दुख आज के लिए है, कल के लिए नया दुख है। नई मुसीबतें हैं, आज के लिए आज ही माफ़ी मांगनी है, आज ही तौबा करनी है, आज ही खुदा के हजूर वेलकम करना है, आज ही उसे दावत देनी है, ताकि हम उसे दावत दें, वो हमारे साथ आए और वो हमारी हमदो सना पर, उस वक्त खुदावंद यीशु गधे पर सवार हुए थे, आज वो हमारी हमदो सना का भूखा प्यासा है। वो हमारी हमदो सना, हमारी होंठों की कुर्बानी चाहता है, और वो चाहता है कि इनकी हमदो सना की आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचे, मेरे नथनों तक इसकी रात अंगेज खुशबू पहुँचे, इनकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुँचे। मेरे अज़ीज़ सुलेमान अपनी महबूबा को कहता है, ऐ मेरी महबूबा, जिस तरह तू अपने रफीकों को अपनी आवाज़ सुनाती है, मुझे भी अपनी आवाज़ सुना। आज मेरा खुदा, आज मेरा यीशु, आपका यीशु इस बात का तलबगार है
कि अगर तुम अमन के साथ जिंदगी बसर करना चाहते हो, अगर तुम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हो, तो फिर मेरा इस्तकबाल कर, फिर अपने आप को मुझ पर निशावर कर दे, क्योंकि तू मेरी मर्जी से पैदा हुआ है, तू मेरे लिए पैदा हुआ है, ना कि किसी और के लिए पैदा हुआ है। थोड़ी जिंदगी है, मेरा इस्तकबाल कर ले, मुझे आवाज सुना। सुलेमान कहता है मेरी महबूबा मुझे आवाज सुना। आज बाखरूबी हमारे लिए आहें भर रही है, आहें भर भर कर बाप के हुजूर जो मुझे और आपको आवाज सुनाई नहीं देती, मुझे और आपको बाखरू की आवाज सुनाई नहीं देती, जो वो आसमान पर बाप के दाहिनी तरफ बैठ कर आहें भरता है कि इस बेटी को, इस बेटे को एक और दिन बख्श दे, एक और दिन बख्श दे। वो हर रोज हमारी शिकायत करती है, बापू हमारी हर रोज शिकायत करती है, इनको माफ कर, इनको माफ कर। हो सकता है कि आज ही ये तेरे घर में आ जाए, आज ही तेरी तरफ रुजू ले आए, आज ही तेरी इबादत करना शुरू कर दे, आज ही तेरे दरवाजे को खटखटा ले, आज ही अपनी तमाम तकलीफों से और तमाम कानूनी कामों से नफरत करके तेरी तरफ आ जाए। मेरे जो वक्त थोड़ा है, सोचता हूँ आपको इस कलाम पर पढ़े जाने, सुने जाने पर बरकत बख्शे। मैं दरखास्त करूँगा